Hello students, today we are going to continue the chapter The 100 Dresses. In the previous video, you have learned some part of this story and we must recall everything before beginning this part. We have learned how the main character of this story, Wanda Petronsky, was teased by other girls in her school. She was a poor girl and came to school every day in the same blue shabby dress, and she was center of joke of the girls due to her funny name and her poverty. हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं किस प्रकार वांडा पेट्रोन्स्की जो कि एक गरीब लड़की है और उसकी गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाया जाता है उसके स्कूल में बाकी लड़कियों के द्वारा. पैगी was her schoolmate, her classmate, and she had developed a game to make fun of Wanda. पैगी जो कि वांडा की एक क्लासमेट है, उसने एक खेल विकसित किया वांडा को चिढ़ाने का उसके गरीबी के कारण, उसके विचित्र नाम के कारण, और इट बिकेम वेरी ट्रबलसम फॉर वांडा. इवन देन शी डिडंट रिस्पॉन्ड इट. She was irritated, and what step was taken by her we will learn in the next part of the story today. But she was not recalled by everyone in the classroom. She used to sit in a corner of her classroom where bad students used to sit. It was not because she was a bad student, but because she was poor, she didn't speak anything, and she felt alone in the class. She had no friends. Even then, many girls used to talk to her outside the classroom, in the ground of the school, or on the way to school. Peggy and Maddie, who were her classmates, used to wait for her before reaching school, on the way to school. And one day, when they were waiting for Wanda and Wanda didn't come, they became late for school and they remembered that she was absent. Otherwise, no one took care if she was present or absent. And you can also answer some questions if you have seen the first part of this story, and you can comment the answer to check if they are correct or not. पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे थे, इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या सुना था, इसको याद करने के लिए कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और इनका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं, यह चेक करने के लिए ठीक हैं या नहीं हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डिड वांडा पेट्रोन्स्की कम? सेकंड क्वेश्चन, what was the room number of her class? Third question, where did she sit in her classroom? Fourth question, in answer to the question about how many pairs of shoes she had, what did Wanda answer? So I am waiting for your answer, and now we can
begin the lines of the story which were left in the previous video। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं कहानी के उस लाइन को जो बाकी रह गए हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए, पिछले वीडियो में वह पूरा नहीं हो पाया था। तो देखें क्या है आगे की कहानी। टुडे इवन though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda। उस दिन भी जब पैगी और मैडी स्कूल आने में लेट हो गए, वांडा का इंतजार करते करते बाहर जब वह स्कूल नहीं आई थी, तो स्कूल देर से आने के बाद भी मैडी खुश थी। मैडी वॉज ग्लैड। क्यों खुश थी? कि सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा पैगी के साथ मिलकर। सी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। और क्लास में मैडी ने अपना अरिथमेटिक का प्रॉब्लम, अपने गणित के कुछ प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सुलझाया। किस तरह से? एब्सेंट माइंडेडली, यानी खोए खोए से, उसका ध्यान कहीं और था, उस सब्जेक्ट पर नहीं था। 8 times 8, लेट्स सी, इतना वह खोई हुई थी दूसरे बातों में कि 8 times 8 कितना होता है, 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल भी उसे याद नहीं आ रहा है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। वह सोचती है कि इसे इतना साहस मिल सके कि वह पैगी को एक नोट लिख कर दे सके, कोई अपना मैसेज वह लिख करके कागज पर देना चाहती है उसे। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वह जानती है कि उसके पास इतना साहस कभी नहीं आएगा कि वह पैगी को सामने से यह बात कह पाएगी। कौन सी बात? कहती टू से, हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेज शी हैज। वह कहना चाहती है पैगी से कि पैगी, अब हम लोग वांडा को यह पूछना बंद कर दें कि उसके पास कितने ड्रेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy। जैसे ही उसने अपने अर्थमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, वह नोट लिखना प्रारंभ की, वह पुर्जा लिखना प्रारंभ करती है पैगी को देने के लिए। सडनली शी पाउज्ड एंड सडर्ड। अचानक से वह रुक गई और सिहर गई, कांप गई। सडर मीन्स कांपना, सिहरना। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। शी पिक्चर्ड यानी उसने कल्पना किया, उसके मस्तिष्क में एक छवि बनी, एक चित्र आया। किसका? उसका स्वयं का। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ, कहाँ पर? इन द स्कूल यार्ड, कि वह स्कूल यार्ड में खड़ी है। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, एक वांडा के स्थान पर मैडी अपने आप को देखती है कि मैं अगला टारगेट मैं ही बन जाऊंगी, कहीं अगर पैगी और बाकी लड़कियों की तो क्या होगा। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। पैगी यह क्वेश्चन पूछ सकती थी कि वह जो ड्रेस पहनी हुई है उसने कहाँ पाया है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। और फिर मैडी को यह बात कहना पड़ेगा कि यह पैगी का ही पुराना ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग्स, जिसको कि मैडी की माँ ने डिस्गाइज करना मतलब वेश बदल देना, रूप बदल देना, कुछ नए ट्रिमिंग्स, नए झालर वगैरह लगाकर उसका रूप बदलने का प्रयास की है उसकी माँ। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 में, जो कि क्लासरूम था उन लोगों का, वहाँ कोई पहचान नहीं सके। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, कि यह पैगी का ही पुराना ड्रेस है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा। और मैडी ने सोच लिया कि अब पैगी जब स्वयं से निश्चय करेगी कि वांडा को चिढ़ाना बंद करना है तो ही बंद होगा। यानी वह लिख करके भी पैगी को
देने का साहस नहीं कर पा रही है कि वांडा को चिढ़ाना बंद कर दें। ओह विल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज द टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। उसने अपने हाथों को, अपने अंगुलियों को अपने छोटे बालों में फिराया, जैसे कि वह प्रयास कर रही हो जो अनकंफर्टेबल थॉट्स, जो बेचैन करने वाले विचार उसके मन में आ गए हैं, उन्हें वह पुश कर सकें, दूर भगा सके। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? वह सोचती है कि क्या फर्क पड़ेगा इससे। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। और मैडी ने वह नोट लिखना जो प्रारंभ किया था उसको फाड़ दिया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। वह पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी और पैगी पूरे स्कूल में, पूरे रूम में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग। पैगी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी संभवतः जो कि गलत हो, ऐसा वह सोचने लगती है। मैडी ऐसा सोचती है, सी थॉट। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। जहां तक वांडा की बात है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट, कि वह केवल एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, पर स्कूल यार्ड में वह अकेली खड़ी रहती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वह शायद ही कभी किसी से कुछ बोलती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज। वह केवल उसी समय बात करती थी स्कूल यार्ड में जब उससे उसके 100 ड्रेसेज के बारे में पूछा जाता था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज, और मैडी याद करती है उसके द्वारा कहे गए एक ड्रेस के बारे में, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स, हल्के नीले रंग का जिसमें रंग बिरंगे ट्रिमिंग्स लगे हुए हैं, झालर लगे हुए हैं। ऐसे ड्रेस के बारे में वह बात करती थी, वांडा बात करती थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश। एक दूसरे ड्रेस के बारे में वांडा बात करती थी जो जंगल ग्रीन, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का ड्रेस जिसमें लाल रंग के फीते लगे हुए हैं। You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. Pretended admiration means प्रशंसा का नाटक करते हुए। Pretend यानी नाटक करना, बहाना करना, और admiration यानी प्रशंसा। तो प्रशंसा का दिखावा करते हुए, नाटक करते हुए लड़कियों ने उस ब्लू ड्रेस, उस नीले ड्रेस के बारे में कहा था वांडा से, You would look like a Christmas tree in that, कि तुम उस ग्रीन ड्रेस में क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई पड़ोगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, और वांडा के बारे में सोचते हुए, उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, जो वह कहती थी कि उसके क्लोजेट में, उसके अलमीरा में सब क्रम से सजे हुए हैं। मैडी began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा सोचने लगी कि इस बार का जो ड्राइंग और कलरिंग कंटेस्ट है, जो पेंटिंग की प्रतियोगिता होने वाली है, उसको कौन जीतेगी। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिडर्ड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। इस प्रतियोगिता में, इस कंटेस्ट में लड़कियों के लिए अलग अलग डिजाइन के ड्रेस का पेंटिंग बनाना होता था और लड़कों के लिए मोटर बोट डिजाइन करके बनाना होता है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। संभवतः पैगी लड़कियों का खिताब जीतेगी, लड़कियों की प्रतियोगिता जीत लेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम।
मैडी ऐसा सोच रही है कि पैगी किसी भी दूसरे स्टूडेंट से, किसी भी दूसरे लड़की से ज़्यादा अच्छा ड्राइंग करती है, पेंटिंग करती है पूरे रूम में। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। और कम से कम यही बात थी जो सब लोग सोचते थे पैगी के बारे में। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड। वह किसी मैगजीन से कोई भी चित्र, किसी भी फिल्म स्टार का हेड, उसका फेस कॉपी कर सकती थी, ड्रॉ कर लेती थी, उसका चित्र बना लेती थी, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। और इस तरह चित्र बनाती थी फेस का कि आप उसे पहचान करके बता सकते हो कि वह किसका चित्र है, यानी ठीक ठीक चेहरा बना लेती थी। ओह, मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन। और मैडी बिल्कुल श्योर थी, निश्चिंत थी कि यह प्रतियोगिता पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। और सोचती ठीक है, अगले ही दिन तो टीचर अनाउंस करने वाली है, घोषणा करने वाली है विनर्स के नाम की, विजेताओं के नाम की। देन दे वुड नो, उसमें वे लोग जान जाएंगे कि कौन जीती है इस बार की प्रतियोगिता। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ड्रिजल मीन्स हल्की बारिश होना, बूंदाबांदी होना। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैगी और पैगी दोनों तेजी से स्कूल आ रहे थे। हरीड मीन्स तेजी से आना, अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के अम्ब्रेला के अंदर। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। और स्वभावतः ऐसे दिनों में, ऐसे विशेष दिनों में वे लोग वांडा का इंतजार नहीं करते थे। ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर आते समय उनके रास्ते में एक स्ट्रीट मिलता था जिसका नाम दिया हुआ है ओलिवर स्ट्रीट। उसके कॉर्नर पर वे लोग वांडा का इंतजार करते थे सामान्य दिनों में, लेकिन वैसे विशेष दिन पर वे लोग वांडा का इंतजार नहीं करते थे। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंस हाइट्स। और वह जो स्ट्रीट था, ओलिवर स्ट्रीट, वह बहुत दूर था, रेल रोड ट्रैक के नीचे था, उन पहाड़ियों के ऊपर से जहाँ पर बॉगिंस हाइट था, जहाँ से वांडा आती थी, उस जगह से काफ़ी दूर था। एनीवे दे वेरेंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। चाहे जो भी हो, वे लोग कोई चांस, कोई रिस्क आज नहीं लेना चाहते थे, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा मैडी से कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसन, जो कि उनकी क्लास टीचर हैं, वह विजेताओं की नाम बताएंगी, विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे? ओह, आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। मैडी ने कहा कि हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद मिस मैसन विनर्स का नाम अनाउंस करेंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और वह पैगी से कहती है कि निश्चित रूप से तुम ही जीतोगी। होप सो, ऐसा उम्मीद करती हूँ, सेड पैगी ईगरली। पैगी ने भी उत्सुकतावश इस बात को कहा कि हाँ, ऐसा ही उम्मीद मैं भी कर रही हूँ। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। और जिस क्षण, द मिनट मीन्स जिस क्षण, जिस पल वे लोग क्लासरूम में प्रवेश किए, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। वे लोग अचानक से रुक गए और भौचक्के हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। देयर वेर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। रूम के चारों ओर, कमरे के हर तरफ ड्राइंग्स लगे हुए थे, चित्र लगे हुए थे। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर खिड़की के चौखट से लटका हुआ, हर किनारे पर पेंटिंग ही पेंटिंग सजा हुआ था। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, बिल्कुल आकर्षक रंगों वाले और लेविश डिजाइन्स, सुंदर सुंदर डिजाइन वाले, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट
शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, सब बड़े बड़े रैपिंग पेपर पर बनाए हुए चित्र, ड्राइंग, पेंटिंग। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वे कम से कम 100 की संख्या में होंगे और सब पंक्ति में सजे हुए, कतार में लगे हुए। दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, और उन लोगों ने सोचा कि ये जो ड्राइंग है ये प्रतियोगिता के लिए ही, कंटेस्ट के लिए ही होने चाहिए। दे वेयर, और वे थे भी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, एडमायरिंगली यानी प्रशंसापूर्वक। और हर कोई जिसने भी देखा उन चित्रों को, वे खुश होकर के या तो सीटी बजा उठे, सीटी बजाने लगे, या फिर मर्मर्ड एडमायरिंगली, प्रशंसा में एक दूसरे से मरमर यानी धीरे धीरे बात करना, उसकी प्रशंसा में आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर्स, और ज्यों ही जैसे ही कक्षा प्रारंभ हुई, कक्षा लगी, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम की घोषणा की। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, मिस मैसन ने कहा कि लड़कों का पुरस्कार जीता है जैक बेगल्स ने। एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और बताया कि जैक बेगल्स का जो मोटर बोट का डिजाइन है वह रूम नंबर 12 में लगा हुआ है, along with the sketches by all the other boys, बाकी दूसरे लड़कों के स्केच के साथ, बाकी दूसरे लड़कों के चित्र के साथ ही जैक बेगल्स का भी चित्र लगा हुआ है मोटर बोट का, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है लड़कों का। एज फॉर द गर्ल्स सी सेड, मिस मैसन ने कहा कि और लड़कियों की जहाँ तक बात है, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वेयर सबमिटेड बाय मोस्ट, जबकि सभी लड़कियों, ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 चित्र सबमिट किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, कहती कि एक लड़की जो कि रूम 13 से है उस पर गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइंस, और उस लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाए हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल कलरफुल, सारे अलग अलग डिज़ाइन, सारे अलग अलग रंग, और सब बहुत ही सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, और जजों की नज़र में उनमें से कोई भी एक पेंटिंग प्राइज जीतने के लिए पर्याप्त था। वर्दी मीन्स योग्य, उचित। एक ही पेंटिंग भी अगर सबमिट की होती वह, तो वह प्राइज जीत जाती। कहते आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि वांडा पेट्रोंस्की लड़कियों के मेडल की विजेता है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. कति दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, वांडा कुछ दिनों से उपस्थित नहीं है कक्षा में, वह स्कूल नहीं आ पा रही है, और कहती है कि जो अप्लाउज, जो प्रशंसा उसे आज मिलना है, उसे वह प्राप्त करने के लिए यहाँ नहीं है, जो कि उसके लिए क्या है, ड्यू, अब बाकी रहा उधार। जिस दिन वह आएगी उस दिन उसे यह सब कुछ दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, कहती है मिस मैसन की हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह कल स्कूल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजिट ड्राइंग्स, और वह पूरे क्लास को अनुमति देती है कि सभी जाकर के, घूम करके उसके चित्रों को, उसके ड्राइंग्स को, जो कैसे हैं, एक्विजिट, बहुत ही आकर्षक हैं, उन्हें देख सकते हैं। द चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू अप्लाउज, बर्स्ट इनटू अप्लाउज यानी प्रशंसा फूट पड़ना। बच्चे उसकी खूब प्रशंसा करने लगे।
and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. और लड़के भी इस बात से खुश हो गए क्योंकि उन्हें मौका मिल गया था अपने पैरों को फ्लोर पर पटक करके अपनी खुशी जाहिर करने का. पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, अपने मुंह में उंगली डालकर विसल बजाने का. दाव दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, जबकि वे लोग ड्रेस के स्केच में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे, फिर भी मौका था खुश होने का, तो वे लोग भी काफ़ी उत्साहित थे. लुक पिग विस्पर्ड मैडी, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट. और मैडी जो है विस्पर्ड यानी धीरे से बोली पैगी को कि लुक पैग, कि देखो पैग, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, कि यह वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वह हम लोगों से बात की थी, बताई थी हम लोगों को. इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं दिख रहा है? यानी वह कहना चाहती कि हाँ बहुत सुंदर दिख रहा है. और उसकी बात से सहमत होते हुए पैगी भी कहती है यस. एंड देयर्स दैट ग्रीन वन, कि और देखो ये हरे रंग वाला ड्रेस है जिसके बारे में वह बताती थी. बॉय एंड आई थाउट आई कुड ड्रॉ, कि पैगी कहती है कि मैं भी सोचती थी, मैं और बाकी लड़के भी सोचते थे कि मैं भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हूँ. और आज के इस पार्ट में हम लोग पूरा कर चुके हैं द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1. अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसमें करेंगे जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिंक के थ्रू दिया जाएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.